Okay, so the next thing that we have on our list, the next thing that we have on our list is going to be what? Is going to be the helium. It's going to be the absorption. Now, this absorption, it occurs where? In the helium. अच्छा, अब देखो सबसे पहली चीज when we're going to talk about helium, the very first thing that we'll have to know is that we'll have to compare its lumen with what? We were going to compare its lumen with the lumen of the duodenum and jejunum. ठीक है? We're going to compare the lumen with what? With the helium and the jejunum, with the duodenum and the jejunum. अगर हम लोग duodenum और jejunum का helium वो lumen देखें, तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई उसका जो हीलियम होता है ना, उसका जो लूमेन होता है, सॉरी, वो कैसा होता है? वो स्फेरिकल होता है. बट इफ सो अगेन दिस इज द लूमेन, एंड ऑब्वियसली द लूमेन इज गोइंग टू बी सराउंडेड बाय टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स. कौन कौन से? यहाँ हमारे पास सर्कुलर मसल्स आ जाएंगे. ठीक है. along with the circular muscles, what other muscles surround uh, the lumen? It's going to be the longitudinal muscles. ठीक है. लेकिन लेकिन अब अगर हम लोग ईलियम का लूमेन देखें, तो ईलियम के लूमेन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. These finger like projections that we have, they are called as what? They are called as villi. ठीक है. villi एक टिश्यू है, ये बात याद रखिएगा. villi हमारे पास क्या है? villi is a tissue. So these finger like projections, they look like this, right? अच्छा जी. अब again in so this right here is the lumen. This right here is the what? Is the lumen. Again lumen को surround कौन कर रहा है? वही circular और longitudinal muscles, ताकि पेरिस्टल्सिस हो सके. तो हम लोगों ने बात करी थी कि हमारे पास जो पेरिस्टल्सिस होता है, इट अकर्स ऑल द वे टिल द रेक्टम, सो वी नीड टू रिमेंबर दैट. ठीक है. यस, विल टेल यू मिप्साम, गिव मी अ मिनट. सो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आ गए, और ये वाले मसल्स जो इसका डायमीटर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस राइट हियर आर गोइंग टू बी द सर्कुलर मसल्स. ठीक है. अच्छा, अब अगर सो दिस इज द टॉप व्यू, राइट? दूसरी बात याद रखिए ना, प्लीज रिमेंबर वन थिंग. Every organ that we have is surrounded by blood capillaries like this. बिल्कुल चिपकी हुई होती है हमारे पास capillaries, so that what could occur? So that exchange could occur, exchange of oxygen, carbon dioxide, and if there is any good, if there's going to be change in for nutrition and the waste products, वो भी हमारे पास क्या हो सकता? capillaries आगे कर रही होती है. So if a tissue itself for respiration, if it's going to need glucose, the blood vessels are going to give it glucose, right? So now what happens is तो देखिएगा. अब अगर मैं एक ईलियम का क्रॉस सेक्शन लूं, if I'm going to take a cross section of the helium, of the lumen of the helium, it's going to look like this, right? It's going to look something like this. Make sense? ये हमारे पास ईलियम का एक क्रॉस सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल से लॉन्गिट्यूडनली, राइट? अच्छा, अब यहां मेरे पास, I'm just going to double layer this particular linings. इन सारी जगहों के ऊपर मेरे पास क्या होंगे? मेरे पास सेल्स होंगे. I would have cells that would line up the lumen, isn't it? अब इसके ऊपर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रही हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं. किस चीज के लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए. These tissues are what we call as villi. ये मैक्रोस्कोपिक होती हैं, मुझे दिखेंगी. ठीक है. So let me show you a picture. Let me show you a picture for it. So where did that picture go?
चलो, let me show you this one first. Let me show you this one first. So let's move it down a bit. Let's move it down a bit. इसको छोड़ो, ये whatever this is, let's forget this. इसको देखो. So this is the lumen of the ilium right here. इस तरीके से ये वेवी सा स्ट्रक्चर आ रहा है हमारे पास टोब्लेरोन की तरह, ठीक है. अगर मैं इसको कट करके फ्लैट कर दूं तो हमें इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. एंड माइंड यू, these structures, they have blood vessels coming into it as well. They have these blood vessels moving into it as well. उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक है. अच्छा, so these structures that we have, let's label them first. So I'm just going to label this one right here. This structure that we have right here is called as a villi. ठीक है? It's called as the villi. जी Mipsam, आ रहे हैं, we're coming there Mipsam. I'll tell you why. क्रॉस सेक्शन मतलब उसको अगर काट के उसको मैं दिखाऊं तो these curves बेटे, they are the villi दिशा बेटे, ठीक है. जिस तरीके से टोब्लेरोन की क्रिप्ट्स होती है ना, तो ये भी इसी तरीके से क्या कर रही है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज कर रहे हैं. नहीं, रुक जाएगा, रुकेगा तो नहीं, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, बट इट्स स्टिल गोइंग टू हैपन. रिजर्व्स तो है ना मुश्तबा हमारे पास, ठीक है. अच्छा अब देखो, अब होता क्या है, अगर हम लोग एक अज्यूम करें तो ये जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है ना, वो इसको यूं करके रैप कर रही होंगी, इस तरीके से पूरा रैप कर रही होंगी, ठीक है. तो वी आर नॉट गोइंग टू शो देम लाइक दिस, वी आर नॉट गोइंग टू शो दीस ब्लड वेसल्स लाइक दिस. हम क्या देखते हैं कि लेट्स से इसके बराबर के अंदर, जस्ट सो दैट वी कुड बेटर अंडरस्टैंड इट, इसके बराबर से हमारे पास एक ब्लड वेसल मूव कर रही है. सो दिस इज अ ब्लड वेसल दैट्स मूविंग राइट हियर, ठीक है. एक ब्लड कैपिलरी है, सो आई एम गोइंग टू लेबल इट राइट हियर. सो व्हाट डू वी हैव राइट हियर, वी हैव अ ब्लड कैपिलरी. मेक सेंस. अच्छा अब इसको देखो, if I'm going to pick out a few cells, if I'm going to pick out a few cells of the villi, इन विलाय के जो सेल्स होते हैं, इनके ऊपर भी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. नाउ अगर सेल्स के ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक हो गई, राइट. ये तो माइक्रोस्कोपिक हो गई. एंड अगेन द होल पर्पस ऑफ दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इज व्हाट, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. अब अगेन एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, ये जो टिश्यूज हैं ये पूरे, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द विलाय. ये टिश्यूज हमारे पास क्या है, ये विलाय है, ठीक है. विलाय के सेल्स के ऊपर ये जो ऑर्गेनल्स हैं which are forming finger like projections, they are what, these organelles are microvilli, ठीक है. याद है हम लोगों ने पढ़ा था, चलो इसको let me write it properly. तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, these are going to be microvilli. Microvilli, please remember, are organelles. Villi are tissues. We can see villi, so macroscopic है. Both of them are increasing surface area to volume ratio for absorption. ठीक. अच्छा, अब मेरे पास इलियम के अंदर whatever the things that have been digested वो आ रही हैं. अब मेरे पास क्या क्या चीजें डाइजेस्ट होकर इलियम के अंदर आई हैं. In the ileum, what I am going to find is going to be what, is going to be glucose molecules, is going to be fructose, और अगर किसी ने मिल्क पिया होगा तो उसके पास के लैक्टोज भी ब्रेक डाउन हुआ होगा, और क्या मिलेगा उसे, गैलेक्टोज, ठीक है. मैं ग्लूकोज को साइड में लेकर हूँ, मैं ग्लूकोज को यहाँ लेकर हूँ. ग्लूकोज के अलावा मुझे और क्या क्या मिलेगा, जब मेरे प्रोटीन्स डाइजेस्ट होंगे तो क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड्स. और उसके अलावा जब मेरे पास लिपिड्स भी डाइजेस्ट होंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट फैटी एसिड्स एंड वी विल गेट ग्लिसरॉल. तो ये देखो, ये सारी जो चीजें हैं ये तो हमें सारी डाइजेशन के बाद मिल रही है ना. अब जो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई वो नहीं हुई, ठीक है. बट दीज आर द प्रोडक्ट्स, ऑल द थिंग्स इन द डब्बाज, के भाई दे आर दोज प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन डाइजेस्टेड एंड और प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है.
Tanisha, sucrose तो डाइसैकेराइड था ना. Disaccharides cannot be absorbed. It is broken down to give rise to glucose and fructose. ठीक है. अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताओ. If I were to ask you guys, give me a number. How many vessels do we have in our body? तो मुझे क्या बताओगे? Give me a number. How many vessels do we have in our body? Villus is singular, बेटे. Villi is plural. 10. So we have 10 types of vessels, Laiba. Are you sure? We have 4. कितनी होती है हमारे पास? 4. ठीक है. अच्छा जी. उन चार में से तीन जो होती हैं वो कौन सी वाली वेसल्स है? दे आर द ब्लड वेसल्स, राइट. कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? सो वी हैव द आर्टरीज, वी हैव द कैपिलरीज, and these capillaries they enlarge to form veins. All right. ठीक है. So we have arteries, veins and capillaries. वेरी गुड. ये हमारे पास, वेरी गुड मिनाइल, ये हमारे पास 3 ब्लड वेसल्स हैं. जो चौथी वेसल होती है वो ब्लड कैरी नहीं करती. उसका नाम होता है लिम्फेटिक वेसल. ठीक है. Lymphatic vessels act as drainage, right? Let me give an example. All the water that we use up at our houses, in the kitchen, in the bathrooms, ultimately it's getting drained, right? And once it's drained, it's being collected and then it's released off into the sea or the rivers or if you live in a first world country, you would have purifying water purifying plants. ठीक है. इसी तरीके से उनको वो वाला फंक्शन अलग है. नूप साहब विल गेट देयर. अच्छा जी. सो इसी तरीके से हमारे पास एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज इनसॉल्युबल है ब्लड के अंदर, वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी. तो वो कौन कैरी करेगा? वो लिम्फेटिक वेसल्स कैरी करेंगी. कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड बच गया हो जो ब्लड के अंदर नहीं जा सका हो, उसको कौन ड्रेन करेगा? लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन करेंगे. हमें पता है जो हमारे पास नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं, which branch off from the arteries and which are going to form the veins, वो capillaries होती हैं. Capillaries basically branch out from the arteries and they join up to give rise to what? To give rise to the veins. इसी तरीके से जो lymphatic vessels होती हैं, small lymphatic vessels are called as lectines. Small lymphatic vessels are called as lectines. तो जिस तरीके से हमारे पास इसको ब्लड कैपिलरी सराउंड कर रही है, हर विलाय को और क्या सराउंड कर रहा होता है? लिम्फेटिक वेसल्स की ब्रांचेस, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग कहते हैं लेक्टीन्स. ऑलराइट. अच्छा, अब क्या होता है? अब देखो. गैलेक्टोस, फ्रक्टोस, amino acids, एंड इवन विटामिन्स को डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑलरेडी वेरी स्मॉल. ठीक है. ऑल ऑफ दीज, हाँ, दिस सराउंड इट. ठीक है. they release most, जहाँ for example if there are things that मुश्तबा that are water insoluble, for example lipids, तो वो किसी ऑर्गन में जाके उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे. फॉर एग्जांपल लिवर के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर अगर फ्लूइड होगा, वाटर होगा, दे कैन इवन ड्रेन दैट इनटू द ब्लड. ठीक है. अच्छा, अब देखो. Galactose, fructose, and glucose, they move in from the small intestines from a region of higher concentration towards a region of lower concentration, that is the blood vessels, by the process of diffusion. तो देखो,
मेरे पास स्मॉल इंटेस्टिन के लूमेन से ब्लड कैपिलरीज के अंदर तीन चीजें डिफ्यूजन से जा रही हैं। कौन कौन सी? फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और अमाइनो एसिड्स। your blood capillaries already, they already contain a high concentration of glucose, right? ना osmosis क्यों होगा? Aiza, are we talking about water molecules मेरा बेटा? हम्म osmosis तो water molecules में होगा ना बच्चे? ओके, अच्छा जी। अब देखो, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा होती है। दूसरी चीजें नहीं होती, बिकॉज ग्लूकोज इज द प्राइमरी सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, राइट? दैट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड। बाकी सब चीजें क्योंकि हमारे पास ब्लड के अंदर कम होती हैं, उसकी कंसेंट्रेशन वैसे ही कम है compared to the concentration that is present in the small intestines, right? So glucose, galactose, fructose, amino acids, they're going to diffuse. लाइबा बात समझ में आ रही है? ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होती है, स्मॉल इंटेस्टिन में कंपेरेटिवली कम होती है, and your body does not want to lose its glucose. So what it does is it actively transports glucose from a region of lower concentration, that is the lumen of the small intestine. हम लोग यहाँ लिख लेते हैं that all of this area is lumen of what? Of the ileum, right? So from the lumen of the ileum, this glucose is going to move into the blood capillaries from a region of lower concentration towards a region of high concentration by the process of active ट्रांसपोर्ट। डू वी गेट इट? ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, फैटी एसिड स्पेशली, थोड़ा बहुत ग्लिसरॉल भी हो जाता है, लेकिन अगेन both of them, especially the fatty acids, they are insoluble in water. So if they're insoluble in water and I am going to put them in the blood, what's going to happen? Hmm. So if these fatty acids which are insoluble, if they will move into the blood, then what's going to happen? एक ब्लॉकेज हो जाएगी हमारे पास, राइट? हमारे पास क्या हो जाएगी? हमारे पास ब्लॉकेज हो जाएगी। ठीक है, देखो, I need these fatty acids. I don't want them to go into my bloodstream. Why? Because your blood is 95% fluid, it's water. And I don't want this, okay, not 95%, plasma is 95% water. जो भी हमारे पास प्लाज्मा कंटेंट है 65 to 70%, वो सारा वाटर है ना। अब इसकी मिसाल कैसी है भाई? फॉर एग्जांपल लेट्स से, यू नो, अगर फॉर एग्जांपल मेरे किचन के ड्रेन पाइप के अंदर इफ अ पीस ऑफ वुड गेट्स स्टक, और if some child throws some toy in the drain pipe, what's going to happen? It's going to choke, it's going to get clogged, isn't it? तो आई डोंट वांट द ब्लड वेसल्स टू गेट क्लॉग्ड। अगर मेरी ब्लड वेसल्स यहाँ उनके अंदर कोई क्लॉगिंग हो गई, ब्लड तो आगे जा ही नहीं पाएगा। If the blood is not will not move towards the respective tissue, what's going to happen? The tissue is not going to get oxygen and the tissue might die. We don't want that. लेकिन हमें फैटी एसिड्स चाहिए। हमने पढ़ा है कि भाई फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, दे यूज्ड टू मेक माय सेल मेम्ब्रेन्स, दे यूज्ड टू मेक आवर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, दे यूज्ड टू यूज्ड फॉर स्टेरॉइड हार्मोन्स, हमें चाहिए। वो किधर से ट्रांसपोर्ट होंगे? वेयर विल दे गो? These fatty acids and glycerol, they move through diffusion. They move through the process of diffusion, not into the blood vessels, but where? Into the lacteals, right? तो lacteals क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? Lacteals are transporting, very good. Lacteals are transporting what? They are transporting glycerol and fatty acids. Glycerol can be absorbed in the blood क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ solubility होती है, right? But just to be on the safe side, just learn कि भाई हमारे पास दोनों फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ना, वो किधर हमारे पास जा रहे हैं? they're going in the lacteals. Make sense? यहाँ तक कोई मसला? जी मैं साम बेटे। Okay, all right. Now,
नाउ दैट वी नो दिस, अब इसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लो। अगर हम लोग इसको देखें, सो दिस राइट हियर इज द होल विलाई। इस विलाई के अंदर मेरे पास कुछ ब्लड वेसल्स हैं। नाउ दीज ब्लड वेसल्स आर गोइंग एंड सराउंडिंग द विलाई, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको दे रही हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेकर आ रही हैं, ठीक है। इनके साथ साथ विलाय के बीच के अंदर हमारे पास और क्या होती है, लेक्टील होती है, ठीक है। तानिया टीएमआई, तनीषा सॉरी, टीएमआई, टू मच इंफॉर्मेशन। खैर, अब एक चीज देखिए, अब जल्दी से मुझे बताओ, हमारे पास फ्रक्टोस, गैलेक्टोस और अमाइनो एसिड्स, ये सब चीजें किधर जाएंगी, देर गोइंग टू गो इनटू द ब्लड कैपिलरी। बाय व्हाट प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वेरी गुड। Glucose will also go into the blood capillaries, but by the process of active transport. All right? Yes, very good. अब similarly हमारे पास जो फैटी एसिड्स होंगे along with glycerol, they too will move by diffusion, but where? They too will move by diffusion, but where? In the lacteals, ठीक है। अब इसको एक बार और देख लो बच्चा लोग, look at it right here। तो देखो, अगर ये हमारे पास पूरी विलाय है, दिस होल थिंग इज अ विलाय, अ विलस, विलस सिंगुलर होता है, विलाय प्लूरल होती है, ठीक है। तो इफ दिस इज सिंगल विलस, हर विलस के सेल के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आई हुई हैं। सो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तो सेल्स के ऊपर है ना, ये माइक्रोस्कोपिक है, तो ये क्या हो जाएंगी, माइक्रोविलाई, ठीक है। हाँ, बिकॉज मिनाइल ग्लूकोज हैज टू बी ट्रांसफर्ड बाय द ब्लड टुवर्ड्स द रेस्पिरिंग टिश्यूज, नो। So there should always be glucose in the blood. There should be a particular concentration of glucose in the blood so that it could be transported from to the rest of the body so that the cells could use it for respiration. बात समझ में आया? अब मेरे पास ब्लड के अंदर ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन है, तो दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मेरा बेटा, कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगी? If there's already a high concentration of glucose in the blood, on the in the ileum हमारे पास क्या हो गई, लो हो गई। So if glucose is going to move from a region of low concentration towards high, तो कौन सा वाला प्रोसेस होगा मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो, अब यहाँ हमारे पास we have some blood vessels moving in where, moving into the or near the villus, and they basically surround the villus like this, right? बीच के अंदर हमारे पास ये वाली जो वेसल है, ये वेसल कौन सी है हमारे पास, दिस वन, that is right here। This vessel that I'm sharing in green, ये हमारे पास जो वेसल है, that's going to be a villus, ठीक है। Just gonna very quickly color this up for you so that it makes sense. Not very good at it, but I like coloring for some reason. Okay, good enough, ठीक है जी। Mustafa, but we have to remember that the three different parts of the small intestine with three different functions. We will better, some we will. All right, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बता दो, कैपिलरीज के अंदर सारी वाटर सॉल्युबल चीजें जाएंगी, कौन कौन सी? ग्लूकोज थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
फ्रक्टोस, गैलेक्टोस एंड अमाइनो एसिड्स, ये सब किधर जा रहे हैं? दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड वेयर इनटू द ब्लड कैपिलरी. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अगेन, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हमारे पास जो है ये किधर एब्जॉर्ब हो रहे हैं? इनटू द लेक्टिन. इजी, वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा जी. So this is how absorption occurs in the small intestine. अब now tell me something. Tell me something. Uh, whatever the substance that are being dissolved in the capillaries, would you consider them to be soluble in water or not? So all of those substances which are soluble in the capillaries would, like glucose, amino acids, uh, fructose, galactose, they're all dissolving in the blood capillaries, right? So would you consider them to be soluble? Yes, we would. Yes, we would. Okay. So since they're soluble, would you also consider them to be solutes? If they are soluble, would you also consider them to be solutes? Very good. ठीक है, वो सब solutes है. अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताओ, अब मुझे एक बात ये बताओ, when all of these solutes are moving into the blood vessels, तो blood vessel के अंदर कि solutes की concentration हमारे पास high हो जाएगी. ठीक है, हमारे पास solutes की concentration क्या हो जाएगी? High हो जाएगी, isn't it? तो what will happen to the water potential of the blood vessel? Very good, Ishal. Yes. Very good, Tanisha. Very good, Mipsam. ठीक है. So the water potential of the blood, अब इसको देखिएगा, क्योंकि इस ब्लड के अंदर सॉल्यूट्स बढ़ गए तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट? इलियम के अंदर से सॉल्यूट्स निकल रहे हैं, इलियम का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सॉल इलियम में से सॉल्यूट्स कम हो रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया उसका? बढ़ जाएगा, ज्यादा हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है जी. तो ये जो इलियम का जो वाटर पोटेंशियल है ये बढ़ गया. अब ये जो इलियम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, these ones, they will also be absorbed. These water molecules from the ileum will then enter into the blood vessels by the process of osmosis from a region of high water potential, that is the ileum, into a region of low water potential, that is the blood capillaries. This way हमारे पास कितना परसेंट वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है? 60%. बाकी का जो 40% बचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है. वो किसका काम है हमारे पास? लार्ज इंटेस्टाइन का. ठीक है, आर वी गेटिंग दिस टिल हियर? ओके, गुड इनफ, गुड इनफ. अच्छा मुझे एक बात तो ये बताओ. वेरी गुड ईशल बच्चे. अब मुझे एक बात छोटी सी ये बताओ, ये मेरे पास ब्लड, ये जो वाटर है जितना भी इलियम के अंदर, ये आया कहाँ से? Where did it come from? It's not only the water that I'm drinking. थोड़ा बहुत वाटर वो है, बाकी सारा वाटर क्या है? कहाँ से आया? हम्म. Where did this water in the ileum come from? Some of it is the water that we're drinking, right? What about the rest? आयशा, इसको दोबारा देखो मेरे बेटा. Anything, Aisha bete, that is going into the blood capillary has to be soluble in what bete? Water. क्या तक बात समझ में आ रही है बच्चे?
anything that is soluble in water is considered as a solute. Are we clear here as well, Aisha Bete? Now, किसी भी solution के अंदर कंपेयर टू वाटर अगर मेरे पास सॉल्यूट्स इंक्रीज हो गए तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? लो। तो अब मुझे बताओ, ये जितने भी हमारे पास सॉल्यूट्स हैं, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड्स, ये सब किधर मूव करें? दर मूविंग फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम द इलियम टुवर्ड्स वेयर? टुवर्ड्स द ब्लड वेसल, राइट? तो देयर सॉल्यूट्स। तो आयशा, ब्लड वेसल का वाटर पोटेंशियल क्या हो गया मेरा बेटा? कम हो गया। आर वी गेटिंग इट टिल हियर? ओके। क्योंकि इलियम से ये सारे सॉल्यूट्स रिमूव हो रहे हैं, इलियम के अंदर, सॉरी, सॉल्यूट्स कम हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स कंपेरेटिवली इंक्रीज हो गए। इलियम का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? हाई। Do we get this, made beta? Very good. This is why water molecules move from a region of high water potential towards a region of lower water potential through the partially permeable membranes of the cells, called by the process of osmosis. Baba, Ishal bete, Ishal, or is it Ishal? I'm sorry, I get confused between these two names. खैर, मुझे बात ही बताओ बेटे, कंडेंसेशन इज ब्रेक डाउन और इज इट जॉइनिंग अप? पहले मुझे ये बात बता बेटा। लेट्स गो ऑल द वे बैक। जब कंडेंसेशन हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, जॉइनिंग अप हो रही है मेरा बेटा? ईशल, ब्रेक। अच्छा, two molecules of glucose are being broken down into maltose, or are they being joined up into maltose? उल्टा तो नहीं बोल गए? हम्म। It's okay, it's okay, it's okay, ठीक है। It's good that you asked, it's good that you asked, ठीक है। मेरा बेटा, डाइजेशन जब होगी ना, तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, उसमें वाटर यूज अप होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है मेरा बच्चा। डू वी गेट इट नाउ? ओके, सो देयर इज नो वाटर प्रोडक्शन हियर। वेरी गुड बनाहिल। नहीं मुस्तफा, अगर मैं एक बटन खा लूं तो दैट्स गोइंग टू बी पास्ड आउट, राइट? सो इट्स नॉट ओनली गोइंग टू बी फाइबर। अच्छा जी। ओके, जॉइन अप ऑस्मोसिस, ओके। अच्छा, ओके। अब सवाल ये है, ओके, यू वेलकम बेटे। अब सवाल ये है, लेट्स गो बैक टू द सवाल। वेरी गुड मनाहिल, वेरी गुड। कि भाई, हमारे पास ये जो वाटर, जिस जिस वाटर की हम लोग बात कर रहे थे ना, किधर गया ये रहा? ये जो वाटर है, whatever this water is that we have in the helium, where is it coming from? Most of it, where is coming from? Besides the water that we're drinking, where else is it coming from? It's coming from your saliva. You're also ingesting your saliva, aren't you? The gastric juice in the stomach, right? अरे नहीं भाई, जो वाटर तुमने पी रहे होते हैं ना, उससे आता है, ठीक है, उससे बन रहा वही होता है जो एब्जॉर्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर, मेरी बॉडी में एटमॉस्फेयर से कहाँ आएगा तनिषा? खैर 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 खैर। अच्छा, सो अगेन, बिसाइड्स द वाटर दैट वी ड्रिंकिंग, जो इलियम तक पानी पहुंचा है, वो कहाँ कहाँ से? इट्स अगेन द वाटर इन द सलाइवा, द वाटर इन द गैस्ट्रिक जूस, द वाटर इन द बाइल जूस, द वाटर इन द पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, अलोंग विद द वाटर दैट आई एम ड्रिंकिंग, उन सब का वाटर इधर है भाई, ये रहा, ठीक है। अगर ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, इफ दिस वाटर वुड नॉट बी एब्जॉर्ब्ड, व्हाट्स गोना हैपन? क्या हो जाएगा? It's going to get out of the body, right? It's ultimately going to get out of the body. If this water is not going to be absorbed, or if majority of this water is not going to be absorbed, then it would get out of the body. Then it would get out of the body as what? Diarrhea. And whenever diarrhea happens,
What do you suffer from? Make sense? बात समझ में आ रही है? That again would also be Aisha bete, that would be also used up for hydrolysis, isn't it? So usually इन दोनों की जो rates होते हैं वो तकरीबन same होते हैं. कुछ organisms होते हैं जिनको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती. For example, there is an organism that is called the desert kangaroo rat. वो अपने blood का water potential कैसे maintain करे? That is through condensation. Excuse me? बिल्कुल बिफ्साम, exactly. राइट. सो खैर क्या बताने का मकसद क्या था? बताने का मकसद क्या था कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगेन वी नीड टू रीअब्सॉर्ब दिस वाटर, राइट? सो इट कुड वंस अगेन फ्रॉम द सलाइवा, फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस, द पेनक्रियाटिक एंड द बाइल जूस. ऑल राइट गाइस, यहाँ तक कोई मसला? अब नाउ once all of these things are absorbed, they we will or our body is going to undergo the assimilation. ठीक है? अब एक छोटी सी चीज देख लो. What is assimilation? What is assimilation? एक छोटी चीज. Let's forget what assimilation is. इसको छोड़ो. एक और बात करते हैं. ये जो ब्लड कैपिलरी इस ब्लड को लेके जा रही है, ये किधर जाएगी? Where is it going to go? It's going to go towards the liver. ठीक है? अब हम एक छोटी सी बात करते हैं, एक छोटी सी बात यहाँ करते हैं. Let's talk about the blood supply to the liver. ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात ही बताओ. Anything associated with the heart is cardio, right? Anything that is associated with liver is hepatic. अब ये मेरे पास क्या है? ये liver है. ठीक है? Now liver is receiving an artery, is receiving blood from an artery. ठीक है? ये आर्टरी उसको कैसा वाला ब्लड लाके दे रही है? ऑक्सीजनेटेड, ताकि जो लिवर है ये रेस्पिरेशन कर सके. इस आर्टरी का नाम क्या है? हेपेटिक आर्टरी. So the liver receives oxygenated blood from where? From the hepatic artery. Aisha, it can be. If it's, देखो, drinking is not the problem. The problem is how much of it is absorbed. नहीं, स्क्वायर नहीं होता बेटा, स्क्वायर नहीं होता. हमारा लिवर हरगिज स्क्वायर नहीं होता. ठीक है? अच्छा. Similarly, the blood vessel that is going to take the blood away from the liver, the deoxygenated blood away from the liver, will be called as what? Hepatic vein. Very good. ठीक है? तो हेपेटिक आर्टरी उसको ऑक्सीजन ब्लड लाके दे रही है. हेपेटिक वेन डीऑक्सीजन ब्लड आगे की तरफ लेके जा रही है. ठीक है? इनटू द वीना केवा. अच्छा, अब इसको देखो, अब इसको देखो, अब इसको देखो. नाउ हमारे पास एक वेसल है जो स्मॉल इंटेस्टिन को, specifically the ileum of the small intestine, that vessel is connecting the small intestine with the liver. Whatever the substances that have been absorbed from the ileum will then move towards the liver. इस ब्लड वेसल को हम लोग क्या कहते हैं? HPV, hepatic portal vein. So the blood vessel transporting the nutrients from the small intestine into the liver. ये हमारे पास कौन सी वाली वेन होगी? हेपेटिक पोर्टल वेन. तो लिवर के पास ब्लड सप्लाई दो जगह से आ रही है, एक जगह से बाहर जा रही है. The oxygenated blood being brought to the liver, hepatic artery. The nutrients being brought to the liver from small intestine for assimilation, hepatic portal vein. The deoxygenated blood going out of the liver into the vena cava is through hepatic
vein. यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई? Liver has a lot of functions, lots of functions. ठीक है? So we'll stop here today. In the next class, we'll talk about assimilation, and hopefully by tomorrow we'll get done with this topic. Allah Hafiz. Have a good day, guys.